Hello everyone. So today we are going to do redox reactions. Your chapter number 7 from chemistry part 2. Alright. So let's begin. Redox reaction. We have learned about redox reaction in class 10th. Right. We had the starting of chapter 1 with one reaction. The first reaction which you learned in class 10 was Mg plus O2 gives you MgO. Right? This was the base. This is an example of redox reaction. And now, in this chapter, we are going to learn the redox reaction in deep with mechanism and extra things. Okay. So, what is redox reaction? You all know it is combination of reduction reaction and oxidation reaction. So, let's learn it further. Classification we know one is reduction and another is oxidation. From reduction RED and oxidation OX, redox reaction. When I say redox, okay, whatever you say, we mean by learning, not by pronunciation. Okay, let's begin. So oxidation क्या है? Oxidation in simple language is addition of oxygen, which you learnt in your class 10. लेकिन अभी थोड़ा एक स्टेप आगे, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे? हमारा O तो माइनस है ना, राइट? इज इट इलेक्ट्रोनेगेटिव? यस, राइट. इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल it has to give 2 electrons to fulfill octet rule, right? Which we have learned octet rule, right? All right. So it is addition of electronegative element or removal of hydrogen or electropositive element. We have H plus, right? So it is electropositive or not? Yes. So in simple language, what is oxidation? Addition of oxygen, removal of hydrogen. Example, Mg plus O2 gives you MgO. This is example of oxidation. One more, S plus O2 gives you SO2. Right? These are the examples of oxidation reaction. Now, second is reduction. What is reduction? Reduction is but nothing but removal of oxygen or electronegative element or addition of hydrogen and electropositive element. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या होता है. ठीक है, लाइक HgO, हीटिंग पे हमें मिल रहा है Hg प्लस O2. तो क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. नाउ FeCl3 plus H2 gives me or gives us FeCl2 plus 2HCl. अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या क्या हुआ है. तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज क्लोरीन वो निकल गया है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड. सो इसे क्या बोलेंगे हम? इट इज ऑक्सीडाइज, सॉरी, इट इज रिड्यूस्ड, राइट or not? Getting it? Yes. Let's look at some more examples. Okay. CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O. Then H2S plus O2 gives you S plus H2O. Right? Mg प्लस F2 यूज यू MgF2. अभी ये थोड़ा लगेगा कि क्या क्या ये कैसे हो गया. देखो इसमें मैं थोड़ा एग्जांपल लेके समझाती हूँ. एक ये वाला Mg प्लस F2, देन आई विल क्लियर योर डाउट. ये इधर तो ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, तो आप कैसे बोल सकते हो ये इससे? ठीक है, देखो यहाँ पे जो Cl2 है, F2 है, वो जो हेलोजन, ये दोनों क्या है? हेलोजन है, राइट? तो वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. ईयर सल्फर इज देयर. तो ये सब जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और वो ऐड हो रहे हैं. तो ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव
element. So these are the examples of which oxidation reaction. Very good. ठीक है. Let's see one more example from okay. Now HgCl2 plus SnCl2. Sn is tin. Okay. Hg2Cl2 प्लस SnCl4. तो इन लोगों में एक में क्या है कि हमारा Cl इसमें बड़ा है, राइट. यहाँ पे रेशियो Cl का कम हुआ है. Cl कम नहीं हुआ, रेशियो Cl का कम हुआ है. ठीक है. वी हैव एडेड मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी क्लोराइड. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स. तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा तो ऐसे तो सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएंगे. हाँ जी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. ऑलराइट. ओके. नाउ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अगर आपको ये याद ना रहे तो वैसे तो ये सिंपल है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या एग्जांपल, जिसमें फॉर एग्जांपल HgO gives you Hg plus O2. इधर क्या हुआ? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हुआ. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो. देखो ऐसे अगर दिस इज रिडक्शन, सॉरी आई एम सो सॉरी, इट इज रिडक्शन. सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना याद रहे, कंफ्यूजिव लगे, मैं समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप. जब भी आएगा वो तो मैं समझाऊंगी कैसे ये माना जाता है. अगर ये याद रखना है आपको तो आप सिंपली कैसे याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन जहाँ पे निकल रहा है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. और जहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं वो क्या है? रिडक्शन. ठीक है. ओके. अभी इसे मैं और क्लियरली समझाती हूँ कैसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या है. ओके. पहले तो याद कर लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन गेन यानी रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज यानी ऑक्सीडेशन. अभी फॉर एग्जांपल Na प्लस Cl2 गिव्स यू NaCl. इधर मैं ये लगाती हूँ तो आपको थोड़ा याद रहेगा. तो यहाँ देखिए ये जो था ना, ये पहले नॉर्मल था लेकिन इधर ऐड हो गया. तो क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, और 2Na हो जाएगा 2NaCl. तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस हुए. और यहाँ क्या हुआ? गेन हुआ. क्या हुआ? गेन हुआ. इधर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इधर वैसे तो ये फिर रिएक्ट करके NaCl बनाएंगे, लेकिन पहले तो Na प्लस Cl माइनस बनेंगे, राइट. तो इसे क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि लूज भी है, लॉस भी है और गेन भी है, राइट. और एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिव लगे तो. Na प्लस O2 गिव्स यू Na2O2 माइनस. फिर वो दोनों रिएक्ट करेंगे. ठीक है. फिर वो लोग रिएक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ? अगेन लॉस हुआ, यहाँ पे गेन हुआ. ठीक है. गेटिंग इट. और एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं. Na प्लस S, Na प्लस 2 S2 माइनस. फिर ये लोग रिएक्ट करेंगे. अगेन ओवर ईयर लॉस, ओवर ईयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हाँ, पहले क्या बनेंगे वो लोग? आयंस बनेंगे, प्लस माइनस. फिर वो लोग अट्रैक्ट होके क्या बनेंगे? एक मॉलिक्यूल बनेंगे. ठीक है, राइट. गेटिंग दिस मच इजी. राइट. तो जो हमने NaCl वाला किया था वो अगर हम डीप में करें तो क्या होगा? हमारा मैकेनिज्म अगर एक और बार मैं समझा देती हूँ. Na प्लस Cl2 हमारा जो था वो हमको मिल रहा था NaCl. ठीक है. अगर हम अभी
बैलेंसिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब पहले क्या बनेगा, Na 2Na है हमारे पास, तो 2Na प्लस बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो Cl2 में आ जाएंगे, Cl माइनस बनेगा। फिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनेंगे, 2NaCl, ठीक है, इजी, हाँ, है ना। अभी क्या होता है, आपने जहाँ देखा कि हाफ रिएक्शन में जो Na वाला रिएक्शन था उधर लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब हाफ रिएक्शन में गेन हो रहा है, हाफ रिएक्शन में ये हो रहा है, तो हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि पहला स्टेप ऑक्सीडेशन हो, दूसरा से रिडक्शन हो, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, यू आर रिमेम्बरिंग। अभी थोड़े टर्म्स हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन वी नो, रिडक्शन वी नो। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट वाज देयर इन योर क्लास 10, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या, एक्सेप्टर। अभी हम कैसे बोलेंगे, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं तो कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए ना, और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो हमें हेल्प कर रहा है, एजेंट हम रखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो हम एक एजेंट रखते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स अस। और रिड्यूसिंग एजेंट यानी डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट और नॉट, करेक्ट। तो हमने जो MgO वाला किया था रिएक्शन, Mg + O2 gives you MgO, उसका मैकेनिज्म अगर देखें हम, वैसे बुक में नहीं है लेकिन हम अगर देखें तो ऐसा हो सकता है क्या, Mg इधर दो Mg है, 2Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और फिर O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देगा O2 माइनस, फिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे और MgO बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन, जो डोनर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो डोनेशन कर रहा है, दैट इज Mg, वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, ठीक है। ही इज लाइक रिच, आई हैव मैनी इलेक्ट्रॉन्स, आई कैन गिव डोनेशन टू मैनी पीपल, राइट, इट इज पॉजिटिव चार्ज, गुड पीपल, संस्कारी, राइट। ओके, नाउ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव थोड़ा वर्ड ऐसा लगा क्या, कॉम्पिटिटिव यानी क्या। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इजी रहेगा समझ। Zn + Cu2 + Zn2 + Cu। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसलिए उसे पॉजिटिव चार्ज मिल गया एंड देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या, जिंक क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और जो हमारे कॉपर है, कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड, ही इज एक्सेप्टर, सो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या सब चल रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके यही हम ले लेते हैं। Zn + Cu + 2 gives you Zn2 + C। यहाँ पे पहले तो आपको सिंपल सिर्फ एक चीज़ फाइंड करो, ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, Zn या Cu, इलेक्ट्रॉन दान कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, वो देखेंगे हम।
सॉरी जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ही इज डोनेटिंग, सो इट इज ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन जहाँ हो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, बाकी बचा वो रिडक्शन हो रहा है उसमें, और ऑक्सीडेशन एजेंट। बस चार में से कोई एक चीज़ आपको पता हो ना, बाकी की चार हो सकती है। देखो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में नहीं आएगा, और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट साथ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल इजी। ओके, एक और तो एग्जांपल ले ले हम। ठीक है, Cu प्लस 2Ag प्लस, देखो अभी हम बैलेंसिंग का रख देते हैं, आएगा बैलेंसिंग भी आएगा इसमें। Cu2 प्लस Ag, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है? दिस टाइम आई वांट टू से, यू ऑल हैव टू से हु इज़ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। प्लस चार्ज जहाँ पे है वो डोनेट कर रहा है, इसलिए उसे प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये इससे प्लस पॉइंट मिल रहा है, इसलिए वो डोनेट कर रहा है। तो क्या कर, उसको ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल। ओके, तो वैसे हमने अभी ये एक रिएक्शन देखे, तो ये क्या था? मेनली मेटल्स पे थे। किसमें थे? मेटल्स। तो कोई हमें टेंडेंसी देखनी पड़ेगी ना, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करता है, कौन कम करता है। तो आपको पता है 10th में हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, है ना? राइट, तो सिमिलर ही है। और हमें ज़्यादातर कौन से यूज़ होते हैं, और यहाँ पे हमने कौन से यूज़ किए थे? Zn की ज़्यादा होती है Cu से, Cu की ज़्यादा होती है Ag से। तो आप देख सकते हो कि Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पोटेंशियल है देने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लाइक न्यू टॉपिक जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट of an element in a compound asserted according to a set of rules formulated on the basis of electron pair in covalent bond belongs to more electron negative। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई, क्या है यह नहीं समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑल, तो हमेशा स्टेट मतलब वो कौन से टाइप पे है, तो हमेशा हम क्या सब याद रखेंगे कि किसका नंबर, मतलब किसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ये और वो सब कुछ। तो थोड़े रूल्स हमने मतलब सेट हो गए हैं कि जिसके कारण आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सो इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट, ईच ऑफ एटम bears an ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0 अगर आप फ्री हो या तो अनकम्बाइंड स्टेट में। ठीक है, evidently each atom in H2, O2, Cl2, O3, P4, S8, Na, Mg, Al has the oxidation number 0, क्योंकि या तो वो खुद के साथ ही लिंक्ड है या तो वैसे ही है। ठीक है, फिर दूसरा है फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस, O2 माइनस, Mg2 प्लस। तो ये सब का जो ये सारे जो कंपाउंड्स है, ऑल अल्कली मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, ऑल अल्कली मेटल्स और आयंस, जैसे ये सारे आयंस Cl माइनस, Fe3 प्लस, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उन लोगों के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। नाउ एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। तो हमने 0 का देखा, +1 का देखा, +2 का देखा, +3 का देखा। 0 यानी कोई भी फ्री स्टेट हो, जैसे
और या तो वो अनकम्बाइंड स्टेट में हो, H2O2 Cl2 O3P4 S8 NaMgAl+1 में ऑल अल्कली मेटल्स या तो आयंस, ठीक है, Na+ है, Mg2+ है, Fe3+ है, Cl है, तो उनको देख हम ओके तो उन सब के +1 नहीं होंगे, उनके अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट वे से चार्जेस। Mg2+ है तो उनका जो होगा चार्ज वो +2 में आएगा। Fe3+ है तो उनका चार्ज किस में आएगा, +3 में आएगा। लेकिन हम एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं कि सारे अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो अर्थ में हमको पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और एल्यूमिनियम का क्या है, +3। ठीक है, आयंस में क्या होता है, उसका जो भी जो भी उसका चार्ज होता है उस प्रकार से उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हम थोड़े और रूल्स है वो भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड्स इट इज़ -2, हाँ -2 भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर O2- तो उसका तो -2 होगा, फिर Cl- उसका क्या होगा, -1। हाँ, लेकिन कोई कोई एक्सेप्शन भी होते हैं O2 में, जहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव peroxides, superoxides, the compounds of oxygen in which oxygen atom are directly linked to each other, while in peroxides we have H2O2, then NO2O2, ठीक है। तो यहाँ पे -1 उनका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, गेटिंग दिस मच, ऑलराइट। फिर कहीं पे सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 है, RbO2 है, तो वहाँ पे उसे -1/2 होता है, ठीक है। तो +2 काफ़ी कभी होता है, +1 भी हो सकता है। सो ऑक्सीजन हैज़ मैनी, राइट, ओके। रूल नंबर 4, हाँ, oxidation number of hydrogen is +1, right? But except there are exceptions when it is bonded with LiH, NaH, CaH2, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो +1 कर सकता है या तो -1, ठीक है। Now in all its compounds, fluorine has an oxidation number of -1. Other halogens Cl, Br, I also have oxidation number -1. They occur as halide ions in their compounds. Now chlorine, bromine and iodine, when combined with oxygen, for example oxacids, oxyanions, हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इधर तो इनका माइनस है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। नाउ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। हाँ, यस, इट मस्ट बी 0। फॉर एग्जाम्पल एक का +2 है, एक का -2, तो 0 हो गया, फिर +3, -1 -2 अगेन 0, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन इनका सम क्या होता है, 0, क्योंकि हम पूरा जो कंपाउंड है वो कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CaO, तो यहाँ पे हम माइनस के प्लस नहीं दिखाते, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई आयन्स हो, तो जैसे कि CO3 2- हो, तो उनका जो टोटल होता है ना, टोटल हम ऐड करें तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ऑल राइट। इतना, ओके। वन मोर थिंग, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन यानी क्या, द ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ अ मेटल इन अ कंपाउंड इज समटाइम्स प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द नोटेशन गिवन बाय जर्मन केमिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक। क्या नाम है उनका, अल्फ्रेड स्टॉक,
तो तब से हमने क्या कह दिया उसे, स्टॉक नोटेशन। ठीक है, काफ़ी बार हम उसके नोटेशन के हिसाब से भी चलते हैं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। ऑलराइट, अभी हम इतना समराइज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन के बारे में ज़्यादा, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फिर दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन, विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जाना, राइट। ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये क्या है वो जानते हैं हम। हमारा जैसे चैप्टर 1 पे देयर वर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इन दिस चैप्टर वी हैव टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत मज़ा आएगा, आप जानोगे ना तो आपको लगेगा आप चैप्टर 1 ही वापस पढ़ रहे हो, लेकिन सारे इधर तो रेडॉक्स के ये। पहले उधर भी हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो क्या था, A+B गिव्स यू C। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज C+O2 gives you CO2, Mg+O2 gives you MgO, right? Now Mg plus N2 gives you Mg3N2, right? तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे तो ईजी है कि जब दो एलिमेंट होते हैं या दो एलिमेंट कंपाउंड साथ में मिलकर एक कंपाउंड बनते हैं, देयर आर 2 or more reactants but the product is one, they combine, right? सेकेंड है डिकम्पोजिशन, वैसे आपने ये सब पढ़ा ही होगा चैप्टर 1 में, राइट। नहीं पढ़ा तो एक और बार जाके क्लास 10th का वीडियो देख लीजिए, ऐसे पढ़ा ही होगा। डिकम्पोजिशन यानी क्या, सिंपल है, ए आपको वो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे H2O है, उसका हम क्या लिखे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें मिलेगा H2+O2। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 10th में, याद होना चाहिए। NaH को हम थर्मोलिसिस करेंगे Na+H2। हाँ, हमने तो उधर का इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस वो भी जब पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब दिस आर द टाइप्स इन द रिडक्शन रिएक्शन, जैसे कि CaCO3 यूज यू। हाँ, अभी आप एक बात देख सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन are mainly endothermic, mostly they are endothermic, right? Now displacement reaction, displacement यानी क्या, एक जन दूसरे जन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये सब तो आपको आता ही है, आता है ना, तो हम एग्जाम्पल सिर्फ डिस्कस करें तो चलेगा। अभी इसमें और टाइप्स भी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि CuSO4 plus Zn gives you ZnSO4 plus C। हम डिस्कस भी करते जाएंगे कौन सा रिडक्शन कौन सा। पहले क्या, हम सिर्फ एक चीज़, सिर्फ ऑक्सीडेशन या तो सिर्फ रिडक्शन को पकड़ो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, अगर आपको बहुत हाई लेवल इलेक्ट्रॉन बिल्डअप नहीं देखना, सिर्फ O का देखना है, तो इधर Zn के पास O नहीं है, इधर आ गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। ये डोनेट कर रहा है, सॉरी, इट रिक्वायर्स डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Zn ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। दूसरे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि V2O5, हमने पीरियोडिक टेबल पे देखा था ना, V और वो सब सारे। फिर TiCl4 plus Mg gives you Ti plus MgCl2। फिर Cr2O3 plus Al plus Al2O3। ये सारे रिएक्शन आपको याद रहने चाहिए, लाइक रट्टा नहीं मारना है, लेकिन उनका पीछे का मीनिंग, मैकेनिज्म थोड़ा याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, यहाँ पे NaOH प्लस H2, फिर अनदर Ca प्लस H2। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख लो, इनफ हो जाएंगे, क्योंकि आप आराम से वर्ड से ही समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है Mg प्लस H2। मैं आपको एग्जाम्पल दे के हम देख लेते हैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स, सो इट वुड बी ईजी। राइट, अभी नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज सिमिलर टू डबल डिस्प्लेसमेंट, सिमिलर वी कांट से इट इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। डिस्प्रपोर्शनेट, तो इसमें क्या होता है, प्रपोर्शन, इट इज रिलेटेड टू प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास H2O2 है, इट विल गो टू H2O प्लस O2। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -1 यहाँ पे है। हमने जैसे देखा था ऑक्सीजन का चेंज हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, -2 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है, क्योंकि O2 हमने देखा था H2O2 ऐसा कुछ हो तो उसका 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब आप इससे ऐड करते हो, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रपोर्शन उसका चेंज हो गया, इसलिए हम डिस्प्रपोर्शनेट बोलते हैं। हाँ, इट इज़ डिफरेंट नाउ। यू स्टार्टिंग में आपको लगेगा इट इज़ इक्वल टू डबल डिस्प्लेसमेंट, बट ऐसा नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसा हो रहा है। ओके, OH माइनस हम कर रहे हैं, सो 3H2O, ओके, और सॉरी इधर मैंने एरो फुल से ड्रॉ कर दिया, इधर ऐड ही कर रहे हैं हम, सो हमें मिलेगा PH3, हाँ PH3 H2PO2। P4 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो खुद से लिंक्ड है, OH का -1 है, H2O का तो +1 -2, यहाँ पे P का 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, -3, फिर इधर +1, राइट। तो इधर प्रोपोर्शन उसका जो है वो सेम नहीं है, आप देख सकते हो, इधर वो 0 था, -3 हो गया, +1 हो गया, सो इट इज़ डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है, ऑलराइट। नाउ वी विल बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस redox reaction? Let us discuss the first method, that is oxidation number method, step by step. Now write the correct formula for each reactant and product. हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेके जाते हैं, Cr2O7 प्लस SO3 विल गिव यू Cr प्लस SO4। अभी मैंने चार्जेस नहीं लगाए, वो लगाती हूँ। SO4 2 माइनस है, Cr3 प्लस है, इधर SO3 2 माइनस है, और ये भी 2 माइनस है, ठीक है। आइडेंटिफाई एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट इन द रिएक्शन। हम अभी क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो Cr के +6 आएगा, इधर ऑक्सीजन का -2 आएगा, फिर SO3 +4 और -2, Cr का इधर हमें मिला गया +3, यहाँ पे +6 -2, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम and for the entire molecule ion in which it occurs. If these are not equal, then multiply by suitable number so that this become equal, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, ठीक है, +6 और +3 है, फिर O का इधर -2 है, इधर भी -2 और -2, तो यहाँ पे -4 हो गया, इधर -2 है, इधर +4 है, तो S का इधर +6 है, तो हमें इसे क्या बनाने का, इक्वल बनाना पड़ेगा, राइट और नॉट।
हमने अभी यहाँ पे जान लिया कि कहाँ पे क्या ज़्यादा है, कहाँ पे क्या कम है, ठीक है। Now, fourth step, ascertain the involvement of ions. If the reaction is taking place in water, add H plus or IH minus ions to an expression on the appropriate side so that the total ionic charges of reactants and products are equal. If the reaction is carried out in acidic solution, use H plus ions in the equation. If the basic solution, use OH minus. हाँ, अभी यहाँ पे दिस इज़ एन एसिडिक SO3H, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा H प्लस। क्या ऐड करना पड़ेगा? H प्लस। तो यहाँ पे हमने जैसे वो सूटेबल करना पड़ेगा, तो पहले के स्टेप में हमने वो एक और चीज़ देखनी थी, भी इक्वेट करना पड़ेगा। इधर +6 है, इधर +3 है, तो इधर 2 लग जाएगा, राइट। यहाँ पे +4 है, +6 है, लेकिन उसके पहले यहाँ ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो अगर हमें इक्वेट करना है तो 2 माइनस है, ये भी 2 माइनस है। व्हाट इफ़ वी मल्टीप्लाई 3, लाइक इधर दोनों जगह 3 करते हैं तो हो जाएगा क्या? 2 माइनस और 6 माइनस, और यहाँ पे भी हो जाएगा, वो 4 टाइम्स है, वो भी देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ दोनों जगह 3 करना पड़ेगा। और हमारा हाइड्रोजन भी हम अगर देखें तो 8 टाइम्स 8 प्लस होगा। क्या होगा? 8 टाइम 8 प्लस। नाउ दे मेक द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड्स इक्वल बाय एडिंग वाटर H2O। ठीक है, हम क्या करेंगे? H2O को ऐड करके उसे इक्वल बना लेंगे। तो द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में से कोई एक जगह ये डाल सकते हैं। नाउ इफ देयर आर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, द इक्वेशन then represents the balanced redox reaction। अभी हमको नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या, ये पूरी रिएक्शन, यहाँ पे H2O ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इधर H2 है, इधर 1, तो हम सिंपली वो वाले मेथड से भी 4 कर सकते हैं, ठीक है। सो one more method is there, that is half reaction method. Let's learn about that. So step 1, produce an unbalanced equation for the reaction in ionic form. ठीक है, we are taking one more example to make it simpler and understandable. 2 plus Cr2O7, 2 minus, use you Fe3 plus Cr3 plus, ठीक है, ऑल राइट। अभी सेकेंड स्टेप देख लेते हैं हम। सेकेंड स्टेप क्या है? लेट्स टेक ऑरेंज, सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। क्या हम हाफ रिएक्शन, यानी क्या इधर से इसे निकाल देते हैं, Fe2 प्लस Fe3 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे Cr3 ये प्लस की साइन में निकाल देते हैं, Cr2O7 2 माइनस, ये मिला हमें। Now balance the atoms other than O and H in each half reaction individually. Here the oxidation half reaction is already balanced with respect to Fe atoms। ठीक है, यहाँ पे हाँ बैलेंस्ड है, Fe पहले उतना है, बाद में भी उतना ही है। So let's forget about it right now, right? ठीक है, अभी हमको क्या बोला है, ऑक्सीजन और O से भूल जाओ, बाकी का आप लोकेट करो। तो यहाँ पे 2Cr हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फॉर अभी हमारा, नाउ फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम, दिस इज एड H2O टू बैलेंस O एटम्स एंड H प्लस टू बैलेंस H एटम्स। हमें अभी क्या करना है, O को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर H ऐड कर देते हैं, तो H2O इधर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। O हमारा 7 है, तो इससे 7 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14, राइट। नाउ ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्जेस। अभी हमारे चार्जेस देखो, अभी Fe में जाते हैं हम वापस, वहाँ पे वैसे तो Fe नंबर सेम था, लेकिन क्या डिफरेंट था, चार्जेस।
तो हम एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे इस बार ना। और फिर पूरा देखने के लिए हम क्या करेंगे, Fe को भूल जाएंगे तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जिसके कारण ये पूरा हमें मिल जाए अच्छी तरह से। तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया तो बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही रहेंगे ना। तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे तो इधर 6 Fe2+ हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको लास्ट में वी ऐड दी 2 रिएक्शन। अभी हम पूरा एक बार ऐड करके बना लेते हैं। कैसे बनता है, हमें मिला था 6 Fe, हमने क्या किया, हमने उसका एलसीएम लिया था 2 × 3, इसलिए 6। ठीक है, Cr2O7 2- plus 14H+ gives us 6 Fe3+ plus 2 Cr3+ plus 7H2O। ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे कि इक्वेशन में सेम टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स है कि नहीं है। एक बार देख लेते हैं, 6 Fe 6 Fe, Cr2 Cr2, O7 O7, 14H 14H, डन। ठीक है, क्लियर दिस मच। हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, हाँ जी। ओके, नाउ there is also redox reaction on the basis of titration. So in acid base systems we come across with a titration method. क्यों करते थे, हम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए करते थे। ठीक है, pH सेंसिटिव। तो हम सिमिलरली इन रेडॉक्स सिस्टम the titration method can be adopted to determine the strength of reductants. ठीक है, और ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है इधर, ठीक है, ऑक्सीडेंट, यूजिंग अ रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर। द यूजेज ऑफ इंडिकेटर्स इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इज इलस्ट्रेटेड in your notebook. So let us know about it. Now in one situation the reagent itself is intensely colored. ठीक है, for example permanganate ion MnO4-, this acts as a self indicator, खुद ही indicate कर देता है। Now the visible end point in the case is achieved after the last reductant, like for example we can say Fe2+ और C2O4 2-। तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके एंड द फर्स्ट लास्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर अपीयर्स एट MnO कंसंट्रेशन क्या हो, एज लो एज 10-6 मोल पर dm³। तो ये खुद से ही मतलब खुद की कलर से ही इंडिकेट कर देता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। नाउ अगर ऐसा कोई ना हो, कोई ड्रामेटिक चेंज कोई चेंज ना हो, so there are indicators which are oxidized immediately after the last bit of reactant is consumed. So the best example we can take is Cr2O7, इसलिए वो काफ़ी जगह हमको देखने भी मिला था। It is not self indicator but it oxidizes the indicator substance, that is diphenylamine, just after the equivalence point or to produce an intense blue color, thus signaling the end point. ये हमें क्या, ये जो सारे टाइट्रेशन मेथड है वो हमें एंड पॉइंट बताता है। वो जैसे ही ये काम करना शुरू करेगा मतलब उसका एंड पॉइंट हो गया, इसके जो रिएक्शन है उसका। ठीक है, और एक मेथड है, ठीक है, और एक मेथड है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वो क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है और कॉमन भी है। रिस्ट्रिक्टेड काफ़ी जगह, लाइक टू ऑक्सीडाइज I- आयंस, say for example if we use like this Cu2+ 4I- will get us Cu2 I2 + I2। ठीक है, हमने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन ली।
So this method relies on the facts that iodine itself gives an intense blue color with starch, right? And it has a specific reaction with thiosulfate ions, which too is an addition, redox reaction. थायोसल्फेट के साथ भी देख लेते हैं हम. वैसे थायो रिप्रेजेंट सल्फर ओनली. S2O3 2I minus plus S4O6 2 minus. I2, though insoluble in water, remains in solution containing Ki और Ki3. मतलब वो लोग क्या एंड पॉइंट हमें बताता है कलर चेंज. सो हमें कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन का एंड पॉइंट जानना है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ कितनी है, वो हम कलर से फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि हम I2 यूज़ कर रहे हैं, Cr2O7 कर रहे हैं, MnO4 कर रहे हैं, चेंज इन कलर हो रहा है, ब्लू फिर रेड, राइट. तो एक और कंसेप्ट हमें आगे सीखना है, लिमिटिंग. ओके, ये एक और चीज़ कि देर आर लिमिटेशंस इन कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. क्यों भाई? क्योंकि अब तक आपने जो देखा, लास्ट टाइम आप सिर्फ लास्ट ईयर पढ़ रहे थे कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो वहीं हम ये अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अभी आपको देखने को मिल रहा है कि सारे रिएक्शन हैं दैट इज़ अंडर रेडॉक्स रिएक्शन. तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी हमने देखा कि -2. ऑक्सीजन का कभी -1 होता है, प्लस भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है. तो ये जो है ना, देर आर लिमिटेशंस है, ठीक है. सभी जगह आप यूज़ नहीं कर सकते. वैसे ही उसका जो मेथड है बैलेंसिंग का, उसमें भी थोड़ी लिमिटेशंस आएगी, ठीक है. एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा. थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू अनदर वीडियोस, राइट. लेकिन केमिस्ट्री के वीडियोस में बड़ा होगा ही, डीप में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है. ना रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस. इलेक्ट्रोड के बारे में वैसे तो आपने जाना होगा, लास्ट ईयर था ही, ठीक है. आपने जो चैप्टर 3 में पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है. मैं आपको सिर्फ उसका जो क्या बोलते हैं वो करके बता देती हूँ, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. ओके, थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि बड़ी चीज़ें नहीं आएंगी. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. लेकिन आपको अगर कभी ड्रॉ करना पड़े तो डायरेक्ट फ़ोटोज़ में से आप कर नहीं पाओगे. सो आई बिलीव कि जैसे बोर्ड वर्क में टीचर जब कर देते हैं तो ज़्यादा याद रहता है इन कंपेयर टू आपको कोई भी फ़ोटोज़ हो. तो फ़ोटोज़ में आप काफ़ी चीज़ें नोटिस करना भूल जाते हो, ठीक है. लेकिन अगर ऐसे बनाए तो एक एक चीज़ आपको जैसे जैसे ड्रॉ होती जा रही है वैसे आप देखोगे, राइट. और जब भी बनाओगे तो भी सारी चीज़ें नोटिस करोगे, ठीक है. सो अभी मैं बता रही हूँ, ये हमारी स्विच है, ठीक है, राइट. फिर ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है. कैथोड है, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एनोड है, ठीक है, ऑलराइट. फिर जो करंट फ्लो होगा वो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो ऐसे होगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ऐसे जाएगा. यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे अट्रैक्ट होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा Zn होगा, तो Zn के साथ रिएक्शन होगा, आपका बनेगा Zn2 प्लस और E2 माइनस, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ आएंगे और हमें जो Cu2 प्लस है उसमें 2 हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा Cu जो हमारा था, राइट. ये हमारा था ना. तो ये प्रोसेस है. फॉर्मूला क्या हमने एक बार लिखी थी, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस Cu. ये था ना हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ डज
take place directly from Zn to Cu but through the metallic wire connecting the two rods. ये क्या है? मेटेलिक वायर है, ये रोड्स है कैथोड एनोड, राइट. Now the electricity from solution in one beaker to the solution in the other beaker flows by the migration of ions through the salt bridge. ठीक है. We know that the flow of current is possible only if there is potential difference between the copper and zinc rods known as electrode. ठीक है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो भी पोटेंशियल चाहिए तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो आपको लास्ट में एक पूरा टेबल दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 298 के पे कितना है. ठीक है, एक बार आप नज़र घुमा लीजिएगा. सो हियर फाइनली आवर चैप्टर एंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट मी बिलो. आई विल सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट. थैंक यू.